Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will work out on the problem based upon the definition of Laplace transformation. So in last lecture, we already discussed the properties of Laplace transformation, which is listed here. For just recall that properties, and we just recall that property, and after that we will move towards the solution of the problems. Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss the example of Laplace transformation based upon the properties and by using a standard result. So in last lecture, we already discussed the properties of Laplace transformation, and in today's lecture we just recall the properties whatever we discussed in earlier lecture, and after that we move towards our problems. So first property is, the property is given here. This is the first property. That property is known as a linearity property. So linearity property shows that the Laplace of a into f1 of t plus b into f2 of t is equal to a Laplace of f1 of t plus b into Laplace of f of t. It is a very simple properties, as we have to only separate the transformation of first term plus transformation of second term, and if there is a constant we can take outside the transformation. So this property is said to be linearity property. Second property, this is known as a change of scale property. Change of scale. So if there is a one function f of t whose Laplace is known, and we have to find the Laplace of f of a t, then this is our answer. We have to replace s by a, and this 1 upon a, that is multiply by 1 upon a or divide by a. Next property is, that is a very important property called as shifting theorem. It is also called the first shifting theorem. So if the Laplace of f of t is equal to f of s, then Laplace of e to the power at f of t is equal to f of s minus a. This property is for derivative of nth order. So this is the formula for nth order derivative. If you have to find the first derivative, then only replace n by 1. For second derivative, n by 2, and so on. Next property is multiplication by t. So if Laplace of f of t is equal to f of s, then Laplace of t raised to the power n, means if you multiply this f of t by t raised to the power n, then we have to use this formula, that is minus 1 raised to the power n, nth derivative with respect to s of f of s. And according to problem, we have to vary the values of n. This is a property which is the integration, Laplace transformation of integration. So suppose we have a function f of t whose Laplace is known, and we have to find the Laplace transformation of integration of that function, but note that here limit is from 0 to t. So Laplace is given by, we have to just divide the the required answer, that is a Laplace transformation of f of t, by a parameter s. And this is one more property I forgot to explain in previous lecture. So you just remember this property. It is a multiplication by t and it is a division by t. So if the Laplace of f of t is equal to f of s, and if you have to find the Laplace transformation of f of t by t, f of t by t means division by t, it is a multiplication by t and it is a division by t, then the value is given by s to infinity f of s ds. So only difference between this property is, it is for multiplication, it is for division, but in multiplication there is any power of t is exist. Means here the power of t may be 1, 2, 100, 200, whatever, it depends upon the problem. But in the division of t, the power of t is must be 1.
This t is a linear. T is a linear term. So if only division by t, not a power of t. So it is a multiplication by t, it may be a power of t. So these all are the properties of Laplace transformation, and to work out on the problem, we know the property along with the standard result, which is discussed in second lecture. So let's start with some example of Laplace transformation. So I will collect this example from university exam paper, and all this example is asked in university exam. So we try to solve the example one by one. So first example is, we have to find the Laplace transformation of f of t, where f of t is given by e to the power minus t sine square t. So I write here the example. Example is given by f of t is equal to e to the power minus t into sine square t. Okay, now try to solve this problem. The problem can be solved by using definition, by using a standard result, or by using a property. So you have to decide which formula or which property is applicable to obtain the solution of this problem. So we have to find the solution. So if you observe that f of t is a product of two functions, and there is no formula to obtain the Laplace transformation of product of two functions. Also, the nature of the function is different. If both the terms are trigonometry, then there are the sin A into sin B or cos A into cos B. This formula is exist. But here one function is trigonometry and one function is exponential. Means nature of the function are different, and there is a product of that function. So directly we can't use any result here, but we can use the property. इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? हमने कल ही देखा था कि अगर फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसमें अगर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करना है आपको, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो छोड़ने के बाद जो टर्म मिलती है आपको, उसका आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. और अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको मिल गया तो बाय यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये ई टू द पावर माइनस टी है, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे जो है दो टर्म का प्रोडक्ट भी है, और ई टू द पावर माइनस टी है, मतलब वहां पे आप एक्सपोनेंशियल टर्म यूज भी कर सकते हैं, मतलब शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ जो सेकंड टर्म है वहां पे मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज अ साइन स्क्वायर टी, उसका लाप्लास अगर आप निकाल सकते हैं तो हम ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो हम ट्राई करेंगे कि जो फंक्शन है साइन स्क्वायर टी उसका लाप्लास निकालने कैसे निकालें. सो फर्स्ट वी कंसीडर लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर इक्वल टू. नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि साइन का फार्मूला हमारे पास है, लेकिन साइन का पावर हमारा लीनियर चाहिए. जैसे कि हमारे पास ये फार्मूला है लाप्लास ऑफ साइन ए की, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि साइन का पावर जो चाहिए वो आपको क्या चाहिए, लीनियर चाहिए. यहाँ पे साइन का पावर क्या है, स्क्वायर है, तो हमको उसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डबल एंगल, हाफ एंगल, वो फार्मूले हमारे पास है तो उसका यूज कर सकते हैं हम. तो हमारे पास एक फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा. सेम फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी यूज किया था, वहां पे कॉस स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या है, प्लस है. 2 कॉस स्क्वायर थीटा अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा, और साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस. तो यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगे यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2. तो ये फार्मूला अगर आप देखेंगे अभी ये वैल्यू तो ये लीनियर है, तो ये हम फार्मूला क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे.
तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे टी है, तो कॉस ट्वाइस टी बाय 2। हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लिनियर प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं हम, लाप्लास को सेपरेट कर सकते हैं और कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ और रिमेनिंग टर्म बचेगी 1 माइनस कॉस 2t। ओके, सो विच इज इक्वल टू, ये 1/2 हो गया और इसको हम सेपरेट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म होगी लाप्लास ऑफ 1 और सेकेंड टर्म होगी यहाँ पे लाप्लास ऑफ कॉस ट्वाइस t। ओके, नाउ वी हैव टू यूज रिजल्ट्स। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो पहला रिजल्ट है कि लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s एंड सेकेंड रिजल्ट है लाप्लास ऑफ cos at इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। प्रॉपर्टी के साथ आपको रिजल्ट भी मालूम चाहिए। तो ये दोनों रिजल्ट अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू लाप्लास ऑफ 1 हो गया हमारा 1/s और लाप्लास ऑफ cos at क्या है s अपॉन s स्क्वायर plus a square. A means the coefficient of t. Here the coefficient of t is 2. The 2 square is 4. Now we just solve this by using a cross multiplication. So cross multiplication we get 1 into s square plus 4. We get s square plus 4 minus s into s. We get s square upon s into s square plus 4. Now here s square get cancel, plus minus 4/2 is 2, so 2 upon s into s square plus 4. So this term is called f of s. तो हमको जो करना था कि a to the power at छोड़कर जो टर्म है उस टर्म को हमको क्या निकालना था, लाप्लास निकालना था। तो उसका लाप्लास तो हमने निकाल लिया। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की टर्म कौन सी है, इंटू e to the power at है, और अगर इंटू e to the power at और इंटू e to the power माइनस 80 अगर कोई टर्म होती है तो वहां पे हम शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देंगे। सो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, अभी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है कि इफ Laplace of f of t is equal to f of s, then Laplace of e to the power at f of t is equal to f of s minus a। ये हमारा शिफ्टिंग थ्योरम है। ये यहाँ पे हमने लिख लिया कि शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो इसका यूज करके हमको फाइंड करना है, जो लास्ट आंसर है हमारा वो फाइंड करना है, लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू साइन स्क्वायर टी। बराबर है। आप अगर प्रॉब्लम देखेंगे हमारा तो प्रॉब्लम देख लीजिए एक बार कौन सा है, e टू द पावर माइनस टी इंटू साइन स्क्वायर टी, e टू द पावर माइनस टी इंटू साइन स्क्वायर टी। अभी इस एग्जाम्पल को आप इस प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लो। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर e टू द पावर 80 है, तो ये टर्म जो है वो टर्म हो गई हमारी e टू द पावर 80, और यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो है f ऑफ t, तो ये हो गई हमारी साइन स्क्वायर टी। और f ऑफ s क्या है यहाँ पर, f ऑफ t का लाप्लास, मतलब जो यहाँ पे टर्म रहेगी उसका लाप्लास। तो यहाँ पे जो टर्म है उसका लाप्लास तो हमने ऑलरेडी निकाला है, जो कि ये है f ऑफ s। तो इसका यूज करके इसका आंसर क्या होना चाहिए, f ऑफ s माइनस a। ए मतलब क्या होगा, t का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको t का कोएफिशिएंट देखना है। तो t का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पे दो प्रॉपर्टी देखी थी हमने, यहाँ पे अगर माइनस लिखते तो यहाँ पे प्लस होता था, तो हम एक ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट a है, तो a क्या हो रहा है, उसमें से माइनस हो रहा। यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कितना, -1 है, तो -1 क्या होगा, इसमें से माइनस होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस, तो ये आएगा +1। ठीक है। अभी हमको सिंपली क्या करना है, आपके पास f ऑफ s की वैल्यू है और मुझे लिखना है f ऑफ s प्लस 1। मतलब क्या करना है, मुझे जस्ट s, जितने भी s है उसको मुझे रिप्लेस करना है s प्लस 1 से। तो ये प्रॉब्लम, ये एग्जांपल देखिए आप, ये टर्म
ये टर्म जो वैल्यू है वो है एफ ऑफ एस की वैल्यू। यहाँ पे जितने भी मुझे जहां जहां पर एस मिलेंगे उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा अभी एस प्लस वन से। सो मुझे मिलेगा 2 अपॉन में एस है तो ये हो गया एस प्लस वन, ब्रैकेट में दूसरी टर्म आएगी एस स्क्वायर है तो ये हो गया एस प्लस वन का स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमको मिलेगा 2 अपॉन एस प्लस वन, और इसको सॉल्व करो आप ए प्लस बी स्क्वायर यूज करके तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। सो वी गेट 2 अपॉन एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये आपके प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस तरफ से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले तो आपको देखना है कि यूज क्या होगा, प्रॉपर्टी यूज होगी या रिजल्ट यूज होगी। रिजल्ट तो हमेशा यूज होना ही है, सिर्फ रिजल्ट अकेला रिजल्ट आपको सॉल्यूशन देगा या रिजल्ट के साथ आपको प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। जैसे कि यहाँ पे इंटू e टू द पावर 80 था, और इंटू अगर e टू द पावर 80 है तो हमेशा हम यहाँ पे क्या करते, शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर सकते। तो शिफ्टिंग थ्योरम का एप्लीकेशन करके हमने क्या किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल हमने देखी है, एग्जांपल में देखिए प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है, तो ये एग्जांपल हम लास्ट में लेंगे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने के लिए आपको डिफिकल्ट जाएगा, तो इसको हम स्किप करते हैं अभी। जो ये पूरे एग्जांपल होने के बाद लास्ट में हम इस एग्जांपल लेंगे। ये एग्जांपल देखेंगे हम, फाइंड द लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin t by t। इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin t by t। Laplace of derivative of sin t by t। ओके, तो कोई रिजल्ट तो अपने पास नहीं है कि जिसमें लाप्लास का डेरिवेटिव का मतलब किसी टर्म का डेरिवेटिव का लाप्लास निकालने के लिए हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। और आपको ऐसे भी नहीं करना है क्योंकि आपको कभी कभी आदत क्या रही थी, sin t by t है, यहाँ पे डेरिवेटिव है तो ये भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे और बाद में देखेंगे क्या है। तो ये प्रॉब्लम एक तो आएगा नहीं, आपका आंसर आएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्रॉब्लम। कभी कभी आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो आप बेस्ट क्या है, अपने मेरिट से जाइए। हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है और रिजल्ट है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये डेरिवेटिव की टर्म है और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव का रिजल्ट हमारे पास है, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये मतलब ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो उसके लिए क्या है, इस टर्म का आपको लाप्लास मालूम चाहिए sin t by t, वो रिजल्ट भी हम लिखेंगे। लेकिन ये अगर डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे ये जो टर्म रहेंगी इसका लाप्लास आपको मालूम चाहिए। जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था कि e टू द पावर a अगर शिफ्टिंग थ्योरम यूज करना है तो e टू द पावर a t मल्टीप्लाई बाय जो टर्म है उसका लाप्लास हमको मालूम चाहिए। तो हमारा पहला एम क्या है, sin t by t का लाप्लास। अभी ये भी कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन ऊपर की जो टर्म है ये sin t, इसका लाप्लास हम इजीली निकाल सकते हैं। और sin t by t जो है, sin t by t, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन ये डिवाइड हो रहा है t से, तो हमारे पास अगेन एक प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय t। तो हम क्या करेंगे, पहले sin t का लाप्लास निकालेंगे, फिर वहां पे प्रॉपर्टी यूज करके डिवीजन बाय t का प्रॉपर्टी यूज करके इसका आंसर निकालेंगे, और बाद में फिर डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी यूज करके ये पूरी इसका आंसर निकालेंगे। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, पहले sin t का जिसका लाप्लास आप निकाल सकते हैं, फिर डिवाइड बाय t है मतलब डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी, और फिर डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी। तो ऐसे 3 प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन लगाएंगे आप तो इस प्रॉब्लम का आपको आंसर मिलेगा। तो पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन में sin t का लाप्लास। सो कंसीडर लाप्लास ऑफ sin t। फार्मूला हमें मालूम है,
लाप्लास ऑफ साइन ए की अगर है तो इसका लाप्लास क्या होता है, ये अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ए की वैल्यू होगी 1। तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी नो दैट अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो प्रॉपर्टी है इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन बाय टी की। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ऊपर हमने प्रॉपर्टी लिखा है कि डिवीजन बाय टी की, और कल भी ये भूल गए थे हमें प्रॉपर्टी लेना, तो वो आप याद में रखो यहाँ पे। तो जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि लाप्लास एक कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास अगर आपको मालूम है, और अगर मुझे उस टर्म का लाप्लास निकालना है जो कि ओरिजिनल जो टर्म जिसका लाप्लास मालूम है और उसको डिवाइड करना है मुझे टी से, तो उसका वैल्यू क्या रहेगी, एफ ऑफ एस डी एस एस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे स्मॉल यूज किया उन्होंने, लेकिन ये जो ये कैपिटल है ना, तो ये कैपिटल है, मतलब यहाँ पे जो है ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेंगे ये रहेंगे। तो ये अगर कैपिटल एफ ऑफ एस यहाँ पर यूज किया है ना, तो यहाँ पर कैपिटल ही होना, यहाँ पे स्मॉल यूज किया तो इसको भी आप स्मॉल ही कंसिडर कर लो, फिर दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ पे जो टर्म है वही टर्म वहां पर भी है, तो इसका यूज करके हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो प्रॉपर्टी तो मैंने वहां पे लिख दी, अभी उसको हम इवेल्युएट कर देंगे। तो हमें देखिए ये जो टर्म है आपको एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ टी का लाप्लास है, और एफ ऑफ टी क्या है, जो टर्म्स यहाँ पे न्यूमरेटर में है। तो जैसे कि हमें जो जिस टर्म का लाप्लास चाहिए वो कौन सा चाहिए, साइन टी बाई टी, तो उस टर्म का हम अभी लाप्लास निकालेंगे। सो लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी, ओके, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। देखिए ये रिजल्ट है हमारे पास, लाप्लास ऑफ ये नीचे तो टी है, ऊपर हमें जो चाहिए साइन टी, तो हमने पुट कर दिया साइन टी। तो इंटीग्रेशन होगा इसका, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ टी का लाप्लास है, और एफ ऑफ टी कौन सा है, न्यूमरेटर में जो टर्म है वो। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ टी कौन सा है, साइन टी, और साइन टी का लाप्लास क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी एस। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेना है हमको, तो इंटीग्रेशन का भी आपको एक रिजल्ट मालूम होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या है, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ये रिजल्ट हमें मालूम है, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या मिलेगा हमको। तो ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करने के बाद आपको मिलेगा 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर s है, तो dx की जगह पे ds, एक्स स्क्वायर की जगह पे एस स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे 1 मतलब 1 का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है, 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो उसको छोड़ दो, इंटू टैन इनवर्स ऑफ कितना आएगा, एक्स बाई ए। एक्स मतलब कितना है हमारा s, और a कितना है 1, तो ये यही रहेगा, और इसकी लिमिट रहेंगी एस टू इन्फिनिटी। लिमिट पुट कर दो, लिमिट कैसे पुट करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, और यहाँ पे हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, s इक्वल टू इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट s इज इक्वल टू ac है। टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, टैन के कौन से एंगल की वैल्यू वो इन्फिनिटी होती है, तो वो होती है 90। अगर आप चेक करेंगे तो टैन 90 कितना होता है, इन्फिनिटी माइनस टैन इनवर्स ऑफ s, और पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स x को हम कॉट इनवर्स s भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला ही है, टैन पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ s। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसका आंसर है लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी। ठीक है, लेकिन आपको जो आंसर निकालना था वो हमें आंसर निकालना था लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन टी बाई टी, मतलब एक फंक्शन के डेरिवेटिव का हमको आंसर निकालना था, और डेरिवेटिव का फार्मूला तो हमारे पास है, तो वो फार्मूला यूज करके वो प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव भी हमको मालूम है, तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे
और उसको सॉल्व करेंगे। सो अगेन यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। सो वी नो दैट if Laplace of f of t is equal to f of s, then Laplace of derivative of t is equal to s into f of s minus f of 0। ये जो एक फार्मूला हमने देखा था ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए देखा था और एक जनरल फार्मूला देखा था। तो जनरल फार्मूला में यहाँ पे क्या है, एस रेज़ टू द पावर n, फिर कम हो जाएंगे वो टर्म बढ़ती जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपके पास रिजल्ट है उसमें हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो देखिए आपके पास जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है डेरिवेटिव का, उसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ये nth डेरिवेटिव है, हमें चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, s आएगा, s का पावर 1 मतलब s। लाप्लास ऑफ f ऑफ t क्या बोल दिया हमने, f ऑफ s बोल दिया, और यहाँ पे s का पावर 0 हो गया मतलब 1 f ऑफ 0। और जहाँ पे s की टर्म टर्मिनेट होती है ना तो वो आपकी लास्ट टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे s नहीं है तो जिस टर्म में s नहीं होगा वो हमारी लास्ट टर्म रहेगी। तो यहाँ पे अगर 1 लेते हैं हम तो यहाँ पे 1 माइनस 1 मतलब 0 और s का पावर 0 मतलब 1। तो यही हमारी s की टर्म निगलेक्ट हो गई मतलब टर्मिनेट हो गई। तो इसीलिए इसके बाद आपको लिखना ही नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आएगा f ऑफ 0। तो उसको हमने सेपरेट भी देखा था वहाँ पे एक रिजल्ट। तो ये फार्मूला हमारे पास है। अभी आप इसको और इसको कंपेयर कर दो तो हमें जो निकालना है वो निकालना है लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन टी बाई टी, इसका आंसर निकालना है। अभी यहाँ पे जो टर्म है ये है एफ डैश ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी। तो एफ डैश ऑफ टी मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग यही है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। और इसको देखेंगे आप तो डेरिवेटिव ऑफ ये टर्म, मतलब ये जो टर्म है इसका लाप्लास आपको मालूम चाहिए ये सॉल्व करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है ये जो एफ ऑफ टी है उसका लाप्लास कितना है, एफ ऑफ एस है, ये आपको मालूम चाहिए। तो ये मुझे मालूम है, क्या है मुझे मालूम, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिखा था। और देखिए अभी यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो गया आप, यहाँ पे भी मैंने एफ ऑफ एस लिया, यहाँ पे भी एफ ऑफ एस लिया। तो आप देखना कि हर एक स्टेप पे हम अलग अलग बातें कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो एक बार आप स्मॉल एफ ऑफ एस लिखो, एक बार आप कैपिटल एफ ऑफ एस लिखो, या एक बार F1 लिखो, एक बार F2 लिखो, वो आप पे डिपेंड करेगा। या लिखो मत, वो आप बाय ऑब्जर्वेशन वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म था एफ ऑफ एस वो हमको सिर्फ ऊपर की टर्म चाहिए थी, मतलब साइन चाहिए था, तो इसके लिए हमने वो वैल्यूज यूज की। यहाँ पे जो एफ ऑफ एस की वैल्यू है वो हमको डेरिवेटिव के अंदर जो टर्म है वो पूरी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एस चेंज हो जाएगा। तो डेरिवेटिव के अंदर की टर्म कौन सी है, साइन टी बाई टी। तो हमें यहाँ पे जो चाहिए वो साइन टी बाई टी का लाप्लास चाहिए जो कि है कॉट इनवर्स ऑफ एस। तो ये वैल्यू हमारे पास है कॉट इनवर्स ऑफ एस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पुट कर देंगे। तो हमारा फार्मूला देखिए आप, फार्मूला कौन सा है, एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, ये फार्मूला है। सो विच इज इक्वल टू एस इंटू एफ ऑफ एस कौन सा हो गया अभी, एफ ऑफ एस मतलब एफ ऑफ टी का लाप्लास, और एफ ऑफ टी मतलब कौन सी टर्म, जिसका डेरिवेटिव है। तो किसका डेरिवेटिव है, साइन टी बाई टी। तो साइन टी बाई टी का हमने लाप्लास अभी क्या निकाला, कॉट इनवर्स एस, कॉट इनवर्स ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब जो फंक्शन है एफ ऑफ टी उसकी वैल्यू 0 के लिए। तो हमारा एफ ऑफ टी कौन सा है, एफ ऑफ टी का फंक्शन है साइन टी बाई टी, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे, t इक्वल टू 0 के लिए चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ टी व्हेन t इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, सो विच इज इक्वल टू s इंटू कॉट इनवर्स ऑफ s माइनस। अभी इसको देखेंगे आप तो यहाँ पे साइन 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगा हमारा 0 बाय 0। 0 बाय 0 मतलब क्या, इनडिटरमाइंड फॉर्म। तो इसको हमको इनडिटरमाइंड फॉर्म में सॉल्व करना है। या आपके पास एक फार्मूला भी है, लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू 1। ये और ये दोनों सेम ही है, साइन टी बाई टी, साइन एक्स बाय एक्स, टी 0 मतलब टेंस टू 0 हो गया। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा s इंटू कॉट इनवर्स ऑफ s
-1। तो ये हो गया हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन आ गया। एक तो हमने डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज कर दी पहले, और बाद में हमने यूज की डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है, और आपको जो प्रॉब्लम मिलेंगे एग्जाम में वो हमेशा कॉम्बिनेशन के फॉर्म ही मिलेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको प्रॉब्लम डायरेक्ट पूछेंगे तो उसका वेटेज भी कम होगा, 2 मार्क का ही रहेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन थ्रू आएगा तो 4 या 5 मार्क के लिए हमको प्रॉब्लम पूछेंगे एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e⁻³ 3t sin 2t। t e⁻³ sin 2t। थर्ड एग्जाम्पल, इसका हमको क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। ठीक है, इस पे वर्क करेंगे, इसमें देखेंगे हम कि क्या हो सकता है। अभी इसमें आपको प्रॉपर्टी आपको अच्छे से मालूम ही चाहिए, अगर प्रॉपर्टी आपको मालूम नहीं है तो फिर बाद में इश्यू जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। और जो हमारे पास फार्मूले है, फार्मूले तो हमारे पास सिंगल टर्म की है, कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो भी सकता है लेकिन हमको हर एक टर्म का नेचर सेम चाहिए तो हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑलजेब्रिक टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब तीनों फंक्शन क्या है, अलग अलग नेचर के है, इसीलिए हमारा कोई फार्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। तो बाद में जाएंगे हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो प्रॉपर्टी में आपको देखना है कि हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है। तो हमारे पास एक शिफ्टिंग थ्योरम है, और शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, अगर एक फंक्शन e⁻80 है और दूसरा फंक्शन अगर कोई मल्टीप्लिकेशन का है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो टर्म है ये e⁻80 का है, मतलब जो दूसरा फंक्शन है ना ये है t × sin 2t ये। तो अगर आपको दूसरे फंक्शन का लाप्लास अगर मालूम है तो हम शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरा फंक्शन जो है ये अगेन दो टर्म का प्रोडक्ट है, t और sin 2t, और यहाँ पे भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। मतलब इसका लाप्लास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। मतलब ये जो दूसरी टर्म थी लाप्लास ऑफ t × sin 2t, अगर इसका लाप्लास मुझे मालूम है तो ये लाप्लास मुझे f(s) हो जाएगा और शिफ्टिंग थ्योरम से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन इसका लाप्लास निकालने के लिए भी अगेन क्या है, यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है, उसमें से एक टर्म t की है, मतलब यहाँ पे आ गई मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी जो हमें मालूम है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमको दो प्रॉपर्टी यूज करना है। पहले हम sin 2t का लाप्लास निकालेंगे, बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और बाद में शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे। या और में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप इसको और इसको कंबाइन करके शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दो, मतलब इसका पहले लाप्लास, इसका शिफ्टिंग थ्योरम, और बाद में मल्टीप्लिकेशन बाय टी, ये भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखो आप कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमको डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव निकालने के लिए टर्म जितनी इजी होगी उतना अच्छा होगा। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन बाय टी पहले सॉल्व करो, और जो बाद में आएगा मतलब एक शिफ्टिंग थ्योरम वो बाद में यूज करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, हम पहले शिफ्टिंग थ्योरम लास्ट में यूज करेंगे। तो ये लास्ट में यूज करने के लिए मुझे t × sin 2t का लाप्लास निकालना ही है, मतलब इसका लाप्लास निकालना है। और इसका लाप्लास निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन बाय t यूज करूंगा तो ये t का काम हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन इस टर्म का मुझे लाप्लास चाहिए और इसका तो फार्मूला मुझे ऑलरेडी मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस टर्म का पहले लाप्लास निकाल दूंगा। समझने के लिए थोड़ा हार्ड जाएगा आपको, लेकिन वो अभी ध्यान में रखना ही होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे sin 2t का मैं लाप्लास निकालता हूँ। नाउ कंसीडर लाप्लास ऑफ sin 2t। क्या है लाप्लास ऑफ sin 2t? sin 2t का लाप्लास है हमारा, sin 80 का फार्मूला आपको मालूम है, पिछली बार भी लिखा था मैंने, e/, एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे, लाप्लास ऑफ sin 80 क्या रिजल्ट है, e/,
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे a मतलब 2 हो गया और एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये हो गया साइन 2t। अभी मुझे निकालना है t इंटू साइन 2t। t इंटू साइन 2t मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय t। तो मल्टीप्लीकेशन बाय t का रिजल्ट आपको मालूम होगा। मालूम नहीं हुआ तो आप कल का लेक्चर देख लो, उसमें एक्सप्लेन किया है हमने, और नहीं वो भी नहीं देखना है तो इसी लेक्चर में मैंने ऊपर रिजल्ट दिए है वो भी देख लो। तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट लिखता हूँ। सो वी नो दैट इफ लाप्लास ऑफ f of t is equal to f of s, then Laplace of t raised to the power n f of t is equal to minus 1 raised to the power n dn by ds raised to the power n of f of s। तो ये हमारा रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय टी का। मल्टीप्लिकेशन बाय टी में क्या हो सकता है, टी का पावर कुछ भी हो सकता है, जो टी का पावर होगा वो उसको आपको n से रिप्लेस करना है। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो हमें जो निकालना है ये है t इंटू साइन 2t। ठीक है, तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ t इंटू साइन 2t। इसको और इसको कंपेयर करो। अभी देखिए ये जो टर्म है ये t रेज़ टू द पावर n, तो यहाँ पे t का पावर 1 हो गया, मतलब यहाँ पे n कितना हो गया हमारा, n इक्वल टू हो गया 1। और दूसरी टर्म है हमारे पास f ऑफ t, तो f ऑफ t क्या हो गया हमारा भी साइन 2t। इसके लिए से दूसरे फार्मूले के लिए f ऑफ t और हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो ये रिजल्ट से आएगा आपका माइनस 1 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, d बाई डी एस 1 रखेंगे मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा, और f ऑफ s यहाँ पे आएगा f ऑफ s, वो ऐसे बाद में रिप्लेस करते हैं। तो माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 कितना होगा, ये हो गया माइनस 1, और ये आएगा d बाई डी एस ऑफ, अभी यहाँ पे जो f ऑफ s है वो क्या है, f ऑफ t का लाप्लास, और f ऑफ t कौन सा है, सेकंड टर्म, और हमारे पास सेकंड टर्म कौन सी है, साइन 2t, और साइन 2t का लाप्लास क्या है आपके पास 2 अपॉन दिस, तो यहाँ पे ये आएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। इसको मैं f ऑफ s लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं f ऑफ s लिखूंगा फिर आगे जाकर मुझे वो दूसरा वेरिएबल लिखना है, इसलिए मैं लिखता ही नहीं है। आप अपने ध्यान में रखो कि ये जो टर्म है यहाँ पे जो f ऑफ t मतलब क्या होता है, f ऑफ s मतलब क्या होता है, f ऑफ t का लाप्लास, तो यहाँ पे f ऑफ t कौन सी है, साइन 2t, तो उसका लाप्लास जो है वो f ऑफ s है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 एज इट इज। अभी यहाँ पे आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना रहता, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये, और यहाँ पे ये फंक्शन x का भी डेरिवेटिव निकलता है, लेकिन x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, इसलिए यहाँ पे x का डेरिवेटिव नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो टर्म है वो है एस स्क्वायर प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया ट्वाइस एस, और 4 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो ये जो टर्म मिली आपको ये मिल गई माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2s हो गया 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर t इंटू साइन 2t का। नेक्स्ट में क्या करना है हमको, जो आपको लास्ट निकालना है t इंटू ई टू द पावर 3t इंटू साइन 2t। सो नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू ई टू द पावर 3t इंटू साइन 2t। इसका आंसर हमको निकालना है, ये है ना प्रॉब्लम, एक बार देख लेता हूँ। e टू द पावर 3t है, e टू द पावर 2t है, e टू द पावर 3t, ओके करेक्ट है। तो इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, लाप्लास ऑफ e टू द पावर 3t इंटू, इसको लिखता मैं t इंटू साइन 2t, विच इज इक्वल टू, अभी देखिए शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, शिफ्टिंग थ्योरम आपको मालूम है, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, हमने इसके पहले भी यूज किया हमने शिफ्टिंग थ्योरम कि लाप्लास ऑफ f ऑफ t, अगर f ऑफ s है देन लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80 इंटू f ऑफ t कितना होगा, f ऑफ s माइनस e होगा।
ठीक है, तो आप इसको और इसको कंपेयर कर दो। यहाँ पे e⁻80 है, e⁻80 है, और ये जो टर्म है f(t), और f(t) का लाप्लास आपको मालूम चाहिए। तो t इंटू साइन 2t का लाप्लास हमने अभी अभी निकाला है, जिसको हम यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे दैट इज f(s), जो बोला है हमने यहाँ पे, क्योंकि पहले टर्म को हमने डिनोट नहीं किया तो इसको डिनोट कर सकते हैं हम f(s) से। तो f(s) मिल गया t इंटू साइन 2t। देखिए t इंटू साइन 2t मतलब e⁻ की जो मल्टीप्लीकेशन टर्म है, e⁻ की जो मल्टीप्लीकेशन टर्म है उसका आंसर क्या रहेगा f(s). तो ये हो गया हमारा f(s). तो अभी यहाँ पे आप शिफ्टिंग थ्योरम अगर यूज करेंगे तो बाय यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम हमको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलना चाहिए s माइनस a मतलब t का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ये हो गया 3। यहाँ पे साइड में लिख लो आप बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या प्रॉपर्टी ऐसे भी बोल सकते हैं, शिफ्टिंग थ्योरम। अभी ये किसकी वैल्यू है, f(s) की वैल्यू है, और मुझे क्या चाहिए, f(s माइनस 3) चाहिए। मतलब सिंपली क्या करूंगा, इस प्रॉब्लम में जितनी भी s है उन सब s को मैं s माइनस 3 से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो रिप्लेस कर दो आप फिर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय s है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, s माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे क्या है, ये इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं हम, s का स्क्वायर है, तो ये हो गया s माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4, और इस ब्रैकेट का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू एस कितना हो जाएगा, 4s माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन, नीचे की टर्म क्या आएगा, a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस टॉइस ए बी, तो 3 इंटू 2 6, मतलब ये आएगा 6x प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये आएगा 9 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 4s माइनस 12 अपॉन s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 प्लस 4 इज 13 स्क्वायर। तो ये जो है ये हो गया आपका फाइनल आंसर, लाप्लास ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस टाइप से प्रॉब्लम इजीली आप इवेलुएट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको रिजल्ट पता चाहिए। रिजल्ट अगर आपको मालूम है, रिजल्ट मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट और प्रॉपर्टीज, तो आप लाप्लास का कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन अलग अलग। उसका पहला भी प्रॉब्लम क्या था हमारा, दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये हो गया, ये हो गया। अभी ये प्रॉब्लम है हमारा, लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t sin t बाय t। नेक्स्ट एग्जांपल, लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t sin t बाय t, इसका लाप्लास निकालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आधा काम तो आपने ऑलरेडी किया है। जैसे कि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो लाप्लास ऑफ यहाँ पे इंटीग्रेशन है, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी। लेकिन जो इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म है जिसको इंटीग्रेंड बोलते हैं हम, उसका लाप्लास आपको मालूम चाहिए वो यूज करने के लिए। प्रॉपर्टी क्या है वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन उसको छोड़ के जो टर्म है उसका लाप्लास आपको मालूम चाहिए। मतलब साइन टी बाई टी का लाप्लास मुझे चाहिए, लेकिन साइन टी बाई टी ये क्या है, डिवीजन बाई टी है, तो इसको डिवीजन बाई टी का प्रॉपर्टी। और हमने अभी देखा था एक प्रॉब्लम हमने अभी किया है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन टी बाई टी, तो इसमें भी क्या किया था हमने, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन है, तो इसको मैंने पहले सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करने के बाद ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको एक शॉर्टकट में जल्दी जल्दी लिख देता हूँ कि उसका आंसर क्या है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, साइन टी का आंसर निकालना पड़ेगा। सो लाप्लास ऑफ साइन टी निकालेंगे हम, तो साइन टी क्या है, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, बराबर। फिर बाद में क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन बाई टी की, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा
1/s²+1, यहाँ पे ds, और ये आएगा s टू इन्फिनिटी। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी। डिटेल में जो है वो आपके पास ऑलरेडी है, तो वो देख लेना आप। इसका इंटीग्रेशन कितना रहेगा? इसका इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स ऑफ s टू इन्फिनिटी। लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट आएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी और लोअर लिमिट आएगा tan इनवर्स ऑफ s का वैल्यू ऐसी। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता? π/2, और ये हो गया tan इनवर्स ऑफ s, और π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s को क्या बोला था हमने? cot इनवर्स ऑफ s। तो ये जो sin t/t है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, उसका आंसर आता है cot इनवर्स ऑफ s। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे हमने सॉल्व किया था। तो आपको वैसे की वैसे वहाँ पे कॉपी करना है। ये देखिए, लाप्लास ऑफ sin t/t, यही रिजल्ट है और यही प्रॉपर्टी है वो। तो cot इनवर्स ऑफ s हमारा उसका आंसर आ गया। लेकिन अभी वो इंटीग्रेशन के अंदर है वो टर्म, तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है, लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। डिटेल में प्रॉपर्टी जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की है, आप वहाँ जाकर कोई डाउट है तो वहाँ पे दे सकते हैं कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ अभी। सो वी नो दैट इफ Laplace of f of t is equal to f of s, then Laplace of integration of f of t dt from 0 to t, ये आपको याद से रखना है कि लिमिट, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 इंटीग्रेशन है लिमिट के लिए। एक पहली लिमिट से 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी जो लिमिट है वो है लाप्लास की डेफिनेशन। एक लिमिट है s टू इन्फिनिटी, ये है डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी की लिमिट्स, और दूसरी है 0 टू t, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसीलिए आप तीनों लिमिट्स है तो तीनों लिमिट्स में कंफ्यूज मत हो, तीनों लिमिट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग लिमिट्स यूज की है। तो यहाँ पे डिवीजन बाय, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर क्या है हमारा? f of t dt इज इक्वल टू, सिंपली क्या करना है आपको, जो आंसर है f of s उसको हमको s से डिवाइड करना है, f of s डिवाइड बाय s। देख लो ऊपर प्रॉपर्टी में क्या है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ही देख लेंगे कि वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है। अगर कुछ देखिए, लाप्लास ऑफ 0 टू t f of t dt इज इक्वल टू क्या है? f of s अपॉन s, जहाँ पे f of s क्या होता है? f of t का लाप्लास होता है। तो यहाँ पे हम वो रिजल्ट अभी डायरेक्ट यूज करेंगे, और यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, जो आंसर है उस आंसर को हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। सो देयरफॉर जो निकलना था आपका लाप्लास ऑफ, क्या निकलना था हमको? इंटीग्रेशन 0 टू t sin t बाय t, ये हमारा आंसर निकालना था इसका। तो यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर कर दो, लाप्लास है, इंटीग्रेशन भी है, f of t है, यहाँ पे dt आ जाएगा, f of t है, और f of t यहाँ पे आंसर कितना था? f of s अपॉन s। तो f of t का लाप्लास आपको मालूम चाहिए, मतलब sin t बाई t का लाप्लास मुझे मालूम चाहिए। तो sin t बाई t का लाप्लास तो मैंने ऑलरेडी अभी निकाला है, cot इनवर्स ऑफ s। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ s लिखूंगा और इसको मैं s से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम का। तो ये इंटीग्रेशन बाय t की प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आंसर है उसको s से डिवाइड करना है, वी गेट फाइनल आंसर। सो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं अभी कोई प्रॉब्लम बाकी है क्या इसमें से। ये cos 80 माइनस cos bt अपॉन t, देखिए इसका सॉल्यूशन आप खुद ट्राई करो, और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे आप पूछ लो इसका सॉल्यूशन। इसमें भी क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे cos 80 है, तो cos 80 माइनस cos bt, इसको आपको इजीली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला है। और बाद में डिवीजन बाय टी है, तो डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी हमारे पास है। अभी हमने एक दो प्रॉब्लम यूज की कि डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी क्या है, तो उस हिसाब से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। और जो प्रॉब्लम बचा था, मैंने जो बोला था हम आखिरी यूज करेंगे, वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये तो देखिए यहाँ पे पहले जो है आपको टर्म देखना है, और हमेशा क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। तो पहले आउटर, इनर टू आउटर जाना है, आप बाहर से मत चालू करो, आप अंदर से चालू करो।
तो सबसे पहले देखूंगा मैं कि यहाँ पे मुझे जो टर्म है उसमें एक लाप्लास निकालना है जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म भी है, जिसमें इंटीग्रेशन 0 to t भी है, जिसमें साइन की फंक्शन भी है और डिवाइड बाय टी भी है और dt है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगा और अलग अलग तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे। जैसे कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी मालूम है, अभी मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये टर्म अगर मुझे मालूम है तो इसका भी मुझे लाप्लास मालूम है, रिजल्ट इसका भी लाप्लास मालूम है, लेकिन ये बाहर है इंटीग्रेशन के, तो इसको तो बाद में ही करना है। तो पहले इंटीग्रेशन के अंदर हम सॉल्व कर देंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर की जो टर्म है यहाँ पे साइन 3t है, साइन 3t है और डिवाइड बाय टी है, तो साइन 3t का तो लाप्लास मैं इजीली निकाल सकता हूँ, और डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी मेरे पास है तो मैं उसको यूज करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। फिर इंटीग्रेशन ऑफ टी की प्रॉपर्टी भी मेरे पास है, फिर उसको सॉल्व कर दूंगा और फिर यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर दूंगा। तो ऐसे अगर आप थोड़ा इमेजिन करेंगे एक एक टर्म तो आपको यहाँ से इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम साइन टी का लाप्लास निकालेंगे। सो कंसीडर साइन 3t और इसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास। साइन 80 का फार्मूला क्या है, e अपॉन, मतलब यहाँ पे आएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। कैसे निकाला हमने, यहाँ पे हमारा रिजल्ट है लाप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू e अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। सो बाय डिवीजन बाय टी, बाय डिवीजन बाय टी। अब डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी क्या है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, ऑलरेडी हमने यूज किया है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लाप्लास ऑफ साइन 3t अपॉन 3 इसका लाप्लास निकालेंगे। सो टी इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी बराबर है एफ ऑफ एस डी एस। एफ ऑफ एस डी एस, एफ ऑफ एस मतलब क्या है कि एफ ऑफ टी का लाप्लास, और एफ ऑफ टी कौन से है, जो टर्म न्यूमरेटर में है, तो हमारे पास कौन से है, साइन 3t। तो ये आएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एस। तो 3 कॉन्स्टेंट आउटसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 0 टू इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी। और हमने ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया। ये टैन इनवर्स का फार्मूला है, लेकिन पिछले जो फार्मूले में यहाँ पे 1 था तो वो 1 अपॉन ही मतलब 1 अपॉन। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमको यूज करना है टैन इनवर्स के लिए, यहाँ पे मैं लगा तो आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एस बाय ए। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो मतलब ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 3 और टैन इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा एस बाय 3। और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, एस टू इन्फिनिटी, 3 कैंसर। अपर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बाय 3 मतलब ये हो गया इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट तो वही है, तो टैन इनवर्स ऑफ एस बाय 3। टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता, पाई बाय 2, और ये आएगा टैन इनवर्स ऑफ एस बाय 3 कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस बाय 3, ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स ऑफ एस बाय 3। मिल गया हमको आंसर कॉट इनवर्स। लेकिन ये आंसर किसका हो गया अभी से, साइन 3t बाई टी का। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी आपको मालूम है। इसके पहले का प्रॉब्लम हमने इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन का तो रिजल्ट बहुत सिंपल है कि जो भी आंसर है उसको सिर्फ आपको एस से डिवाइड करना है, तो वो रिजल्ट हम यूज करेंगे। सो नाउ इफ, वो प्रॉपर्टी भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एस। सो देयरफॉर यहाँ पे जो निकालना है, हमको निकालना है लाप्लास ऑफ, किस टर्म का लाप्लास निकालना है, इंटीग्रेशन 0 to t साइन 3t अपॉन 3, ये जो टर्म है वहां पे ये है इंटीग्रेशन 0 to t साइन 3t बाई टी, ये टर्म देखेंगे हम। तो साइन 3, यहाँ पे फार्मूला जो है इंटीग्रेशन के अंदर की जो टर्म है उसका लाप्लास आपको मालूम चाहिए, और इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म है साइन 3t बाई टी, इसका लाप्लास हमने ऑलरेडी निकाला है। तो इसका आंसर क्या रहेगा,
इसको सिर्फ s से डिवाइड करना है, तो 1/s इंटू कॉट इनवर्स ऑफ s/3, s का भी आंसर हो गया। और लास्ट में जो एक बाकी है वो बाकी है बाहर e⁻⁻4 की है, जिसका आपको आंसर निकालना है। बाहर जो है e⁻⁻4 की है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तो डायरेक्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज होगा। तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर निकाल देता हूँ। लाप्लास ऑफ e⁻⁻4 की इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t sin 3t अपॉन 3 dt। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, f ऑफ s+4 हो जाएगा बाय शिफ्टिंग थ्योरम, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कैसे कि अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि e⁻80 इंटू समथिंग है और उसका अगर आपका लाप्लास मालूम है तो हमको क्या करना है, सिर्फ s को रिप्लेस करना है s माइनस a से। तो a कितना है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे f ऑफ s क्या रहेगा, f ऑफ s मतलब जो e⁻⁻4t की मल्टीप्लीकेशन की जो टर्म है उसका लाप्लास, मतलब ये टर्म, इसका लाप्लास तो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ ये इसको बोलेंगे हम f ऑफ s, ये हो गया हमारा f ऑफ s। तो ये f ऑफ s होने के बाद इसमें s+4 चाहिए मुझे, तो s को सिर्फ किससे रिप्लेस करना है, s+4 से। तो ये आएगा s+4 कॉट इनवर्स ऑफ s+4/3। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी एंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। एक प्रॉब्लम ये जो है ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसको सॉल्व करके देखो, ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।